اور ان بنیادی حقوق کی نفی ہے جو پاکستان کا آئین آزادی رائے کے لیے ہمیں دیتا ہے۔ ہم اس کے اوپر بھی حکومت سے استفسار چاہتے تھے لیکن حکومت نے موقع نہیں دیا۔ تیسرا اہم ترین مسئلہ کہ کوئٹہ میں جب ہمارے سب سے قریبی دوست ملک برادر ملک چین کا اعلیٰ ترین وفد موجود تھا، سفیر اور ان کے ساتھ ایک ڈیلیگیشن موجود تھا، وہاں پر ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا جس میں 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ یہ ایک بہت بڑا حملہ تھا، یہ صرف دہشت تھی، یہ سی پیک کے اوپر حملہ کیا گیا ہے اور یہ براہ راست حکومت کی نااہلی اور نالائکی ہے کہ پاکستان کے اہم ترین دوست کے سفیر کے دورے کے موقع پر ایسی کارروائی ہو جانا، چونکہ وہ علاقہ نہایت گارڈڈ علاقہ ہے، وہ کوئی عام علاقہ نہیں ہے، اور اس سے پاکستان کی شہرت کو، پاکستان کے امیج کو اور سی پیک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اور یہ بات بھی میں کہوں گا کہ یہ واقعات دہشت گردی کے اس لیے زور اٹھا رہے ہیں کہ حکومت نے سیکیورٹی کے اداروں کو دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کی بجائے اپوزیشن اور خاص طور پہ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے خلاف جھوٹے مقدمے قائم کرنے، ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں کرنے پر جھونک دیا ہے۔ ہمارے زمانے میں یہ ادارے 200% دہشت گردی کے اوپر کام کرتے تھے، سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال نہیں کیا جاتا تھا، جس کا نتیجہ تھا کہ پاکستان میں ہم نے دہشت گردی کو شکست دی۔ لیکن پچھلے کئی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ اس حکومت کی ترجیح دہشت گردی نہیں ہے، اس حکومت کی ترجیح اپوزیشن کے خلاف جھوٹے مقدمے، انتقامی کارروائیاں ہیں۔ تو آخر میں پھر کہوں گا کہ ہمارے دل اور جذبات مجروح ہوئے ہیں کہ ایک ایسی قرارداد جو ہر پاکستانی کے دل کے قریب ہے، جو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے تعلق رکھتی ہے۔ میں نے اس دن بھی اسمبلی میں کہا تھا کہ اس سے زیادہ اہم کام کیا ہے کہ جس کو وزیر اعظم کر رہے ہیں اور ایوان کے اندر نہیں ہے۔ ان کو چاہیے تھا کہ وہ خود ہوتے اور حکومت کے وزیر اس قرارداد کو پیش کرتے، لیکن اس روز حکومت نے نہ وزیر اعظم آئے، نہ کسی وزیر میں جرأت ہوئی کہ اس قرارداد کو پیش کرے، اور آج پھر حکومت نے اپنی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی قرارداد سے زیادہ انہوں نے روٹین کے کویشچن آر کو موقع دیا کہ اسے چلایا جائے، اسے بلڈوز کیا جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کرنا چاہتے تھے تو کویشچن آر کو زبردستی چلانے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ حکومت نے ہمارے جذبات سے بھی کھیلا ہے اور قوم کے جذبات سے بھی کھیلا ہے، اور اس عمل پہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت معافی مانگے اور بجائے اجلاس کو برخاست کرنے کے اس کو جاری رکھے، تاکہ اس کے اوپر ایوان کا ہر ممبر اپنے جذبات کا اظہار کر سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور جس طرح احسن اقبال صاحب نے آج قومی اسمبلی کی کارروائی کی تفصیل آپ کو بتائی، یقیناً بہت ہی سنجیدہ مسئلے پر جس غیر سنجیدگی کا مظاہرہ اسپیکر صاحب نے کیا، اور ہم 2 دن سے اس پر سوچ رہے ہیں کہ حکومت کا موقف وزیر اعظم کی سطح پر جب انہوں نے قوم کے سامنے پیش کیا، اور اگلے روز حکومت کے وزراء نے قومی اسمبلی کے سیشن سے پہلے ہی اناؤنس کر دیا کہ ہمارے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں، اور ہم حکومت کی جانب سے آج قرارداد پیش کر کے اس معاہدے کو تکمیل تک پہنچائیں گے جو ہم نے ٹی ایل پی کے ساتھ کیا۔ لیکن قومی اسمبلی کے اندر انہوں نے ایک پرائیویٹ ممبر کے ذریعے
बिल को करारदाद को पेश किया और टीवी पर आकर उन्होंने ये बात की कि हुकूमत ने अपना मुआहदा पूरा कर लिया है, जबकि बैनुल-अक़वामी मीडिया के सामने उन्होंने ये मौक़िफ़ रखा कि ये एक प्राइवेट मेंबर की सूरत में हमने करारदाद को पेश किया है, ये हुकूमती पॉलिसी नहीं है। मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को कौमी असम्बली में आकर इस इब्हाम को दूर करना चाहिए कि जो उन्होंने बैनुल-अक़वामी दुनिया और अपनी कौम के सामने पेश किया है कि एक जानिब तो वो कौम से कह रहे हैं कि हमने आपके ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत के मसले को अक़वाम मुत्तहिदा, OIC और बैनुल-अक़वामी दुनिया में जिस तरह लड़ा है उस तरह किसी ने नहीं लड़ा, और दूसरी जानिब बैनुल-अक़वामी दुनिया से कहते हैं कि इस करारदाद से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। इस अमल को हम किस चीज़ से ताबीर करें कि वो बैनुल-अक़वामी दुनिया को धोखा दे रहे हैं या अपनी कौम को धोखा दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जिस तरह आजकल मुल्क के अंदर सिक्योरिटी के मसाइल हैं, हम समझते हैं कि कोयटा धमाका ये हम पाकिस्तान पर इसको हमला तस्वुर करते हैं, और दीगर मुल्क के अंदर भी जो सूरत हाल है और जिसकी बुनियाद माशी सूरत हाल बनी है कि ढाका, चोरी और कत्ल गारत जिस तरह गली गली में इस वक्त रक्स कर रही है, हम मुतालबा करते हैं कि मुल्क के अंदर फिलफौर अमन के हवाले से इक़दामात उठाई जाए। लोग कत्ल हो रहे हैं, दुकानों में कत्ल हो रहे हैं, बाज़ारों में कत्ल हो रहे हैं और घरों के अंदर उनके डाके हो रहे हैं। खुदारा हुकूमत होश के नाखुन ने, कौम का पैमाना सब्र से लबरेज हो चुका है। हम कौमी असम्बली के अंदर कौम के मसाइल को उजागर नहीं कर सकते, नामूस रिसालत के मसले पर बात नहीं कर सकते, ख़त्म नबूवत के मसले पर बात नहीं कर सकते, और कौम बिलबिला रही है। मैं समझता हूँ कि अपोजिशन की तमाम जमातें, उनको भी इस हवाले से हंगामी तौर पर मीटिंग बुलानी चाहिए और देर नहीं करनी चाहिए, बल्कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर अंदर ही इस पर गौर व खौस करके एक पॉलिसी देनी चाहिए कौम के जज्बात की तर्जुमानी के लिए। आज आपके सामने हुकूमती मुनाफ़क़त की बदतरीन मिसाल आई है। इसकी कोई नज़ीर पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख़ में नहीं है। आज हमें तवक्को थी कि एजेंडे पर नामूस रसालत के मामले पर बहस का आगाज़ होगा, एजेंडे पर नहीं रखा गया। हमने ज़ोर दिया कि आज इस बहस का आगाज़ किया जाए। हुकूमत ने राय फरार इख्तियार की। स्पीकर साहब आज तशरीफ़ ही नहीं लाए। हुकूमत का कोई वज़ीर आज ऐवान में नहीं आया। आज कुर्सी सदारत पर एक ऐसे शख्स को बिठाया गया, डिप्टी स्पीकर साहब को, जिनके इलेक्शन को इलेक्शन कमीशन का लज़म करार दे चुका है। हाई कोर्ट उसकी तौसीक कर चुका है। जो एक स्टे ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट से आज असेंबली का मेंबर है, उसको कुर्सी पर बैठाया गया। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, मैंने मंगल के दिन भी कहा था कि अगर असेंबली में बात नहीं हो सकेगी, अवाम के मसाइल, अबसार आलम साहब पर हमला एक तरफ, आज़ादी सहाफ़त पर हमला एक तरफ, हम वो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अगर नामूस रसालत पर बात ना हो सके, फिर मैं माजरत से कहूँगा कि वही होगा जिसकी निशानदेही मैंने मंगल को की थी। फिर अफसोस का इज़हार मत करें। आप क्यों ऐवान से भागते हैं? जो दावे करते हैं कि हम दुनिया के सामने मामले को लेकर जाएंगे, अक़वाम मुत्तहिदा में लेकर जाएंगे, OIC में लेकर जाएंगे, आज वो अपनी कौमी असम्बली में, जो इस मुल्क का सबसे बड़ा इदारा है, नामूस रसालत के मसले पर बहस से गुरेज़ां है। इसकी क्या वजह है? किस बात से घबराते हैं आप? और आज
वहाँ पर सिर्फ अपोजिशन के लोग नहीं थे, अपोजिशन की तमाम जमातों के लोग थे, हुकूमती बेंच से भी लोग थे, हुकूमत के MNA भी आज मौजूद थे जो कह रहे थे कि इस नामूस रसालत के मामले पर बहस की जाए। आज हुकूमत किस बात से डर रही है? हमारी मुतालबा है, कल छुट्टी का दिन ज़रूर होगा, लेकिन ये मामला उससे बड़ा है। कल से बहस का आगाज़ किया जाए। एक मुत्तफ़िका करारदाद कौमी असम्बली से आनी चाहिए ताकि सारे मुल्क को पता चले कि पाकिस्तान की अवाम नामूस रसालत के मामले पर मुत्तहिद है, पाकिस्तान की अवाम एक है। हमारे सियासी मसाइल हो सकते हैं, हमारे इख्तलाफात हो सकते हैं, नामूस रसालत पर कोई दो राय नहीं है मुल्क के अंदर। ये मामला हर पाकिस्तानी, हर मुसलमान के दिल के करीब तरीन मामला है। आज इमरान खान इस मामले से भी भागेगा, इसको हम भागने की जगह नहीं देंगे। ये बात आप याद रखें। मैं फिर मुतालबा करता हूँ कि अगर आज शाम को इजलास नहीं बुला सकते तो कल सुबह इजलास बुलाएं, ताकि ये मामला, आज पूरा मुल्क इंतज़ार कर रहा है कि इस मामले पर कौमी असम्बली कोई मुत्तफ़िका करारदाद पास करेगी ताकि हम सारी दुनिया के सामने पाकिस्तान के अवाम के जज्बात रख सकें। बयान आया जिसमें कहा गया कि हुकूमत ने जो करारदाद लानी थी वो ले आए। अब पीपल्स पार्टी और नून लीग अगर कोई अपनी करारदाद लाना चाहते हैं तो वो ला सकते हैं। इसके ऊपर कमेंट करें। करारदाद पड़ी है किसी ने जो हुकूमत लाई है, हम कहते हैं उसी से इब्तिदा कर लें। उसमें पहला नुक्ता क्या है, ज़रा पढ़ ले अपनी करारदाद को। हुकूमत के तर्जुमान जो है, ये अगर हुकूमत ने लाना था तो हुकूमत ने वजीरों ने क्यों पेश नहीं की? वज़ीर आज़म को पेश करनी चाहिए थी। क्या ये मामला इतना मामूली नौइयत का है कि वज़ीर आज़म ऐवान में तशरीफ़ नहीं ला सकता, उसके वज़ीर करारदाद नहीं दे सकते? अवाम को बेवकूफ़ ना बनाए। ये मामला सिर्फ सियासत का नहीं है, ये मामला पाकिस्तान के हर शख्स के दिल के करीब है। ये सियासी बातें नहीं हैं जो हम कर रहे हैं यहाँ। उस पॉलिसी पर बहस होगी, उसके बाद पार्लिमान फैसला करेगा। बहुत शुक्रिया। मियां नवाज शरीफ साहब की जायदाद नीलाम करने का हुक्म दिया नायब कोर्ट ने अभी सर, इस पे क्या रद्द अमल है आपका? नवाज शरीफ साहब की जायदाद नीलाम होने के बाद नवाज शरीफ साहब का सब कुछ ले ले, नामूस रसालत पर सब कुछ कुर्बान है। जिंदाबाद जिंदाबाद। ए नूरे खुदा, नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने, गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।